Okay, friends, today we are going to talk about one of the numerical of chapter number 3, question number 8, that is 3.8. The question is like, on a two-lane road, car A is traveling with a speed of 36 km per hour. Two cars B and C. So car A is moving with 36 km per hour. Car B and C approaches car A in opposite direction with a speed of 54 km per hour. Okay. At a certain distance, a certain instant, when the distance AB is equal to AC, AB and AC are same, both being 1 kilometer. Distance is given 1 kilometer. B decided to overtake A before C does. Okay, so situation I just want to represent that on the board. The car A here, let's say I'm just representing by box. This car A is moving with 36 km per hour. Suppose in this direction, 36 km per hour. Car B and C approaches in other lane. Suppose if we say a car B is in other lane, yeah, okay. Suppose if we say car B is in the same lane of car A, two lane road are there. So B is just ahead of car A, which is traveling with the speed of 54 km per hour. And suppose let's say the car C is in opposite lane. Okay, second lane, car C. This is also moving with 54 km per hour. The distance is given at certain instant when AB is become equal to AC, and this distance is given 1000 meter, yeah, 1 kilometer, right? I'm just presenting that in meter, 1000 meter. This distance is equal to AC, so this distance is also 1000 meter. Okay, this thing is given. So B and C are in opposite direction as two lane roads are there. So car A and B are moving in the same direction in one lane, and car C is moving in opposite lane. Right. Now interesting point is what? When A, B and AC are equal, driver of car B decided to overtake A before C does. Right. Now the question is that what minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? Minimum acceleration of car B. Okay, so here C is not performing accelerated motion. It is moving with constant velocity, and that is 54 km per hour. Right. So here acceleration of car C is 0. That is very important point, because velocity is constant. Car C is running with the velocity of 54 km per hour and constant velocity. Now, so understand the question here. Definitely you people can see that here A, B and C, all three cars are in motion. That means this is the question of relative velocity, right? So definitely you people can find out मिनिमम एक्सेलरेशन. मिनिमम मतलब कि कम से कम एक्सेलरेशन कार बी का चाहिए, सो दैट विदाउट एक्सीडेंट ये कार बी यहां से यहां चली जाए बिफोर कार सी रीचेस टू कार ए. दिस इज व्हाट आवर क्वेश्चन, दिस इज आवर टास्क. तो पहले तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में. सो वी इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा. And suppose if A and B are taking in positive direction, तो C की velocity उल्टी डायरेक्शन में है तो नेगेटिव आ जाएगा. Now VB is equal to what? This velocity of car A, B and C with respect to ground is given. Okay, so their absolute velocity with respect to ground is 15 meter per second. If you convert 54 kilometer per hour, you will get 15 meter per second, like that velocity of C. But as it is moving opposite to car A and B, we should write minus 15 meter per second, right? तो यहाँ पे हमें फाइन क्या करना है? फाइन ये करना है कि B कितना एक्सेलरेशन से भागेगा. ओके, तो हमें फाइन करना है एक्सेलरेशन ऑफ B, बट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? कार A के, क्योंकि A को क्रॉस करना है. So here we just want to find out.
ठीक है। लेकिन अभी कैसे मिलेगा कैसे, तो पहले हम सोच लेते कि कार सी को इधर आने के लिए कितना टाइम लगता है। तो कार सी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी डेफिनेटली, तो हमें अप्लाई करना है वेलोसिटी ऑफ कार सी इज इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू ए अभी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो इधर से इधर 1000 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कार सी को कितना टाइम लगेगा, उतना टाइम में कार बी को क्रॉस करना चाहिए। ये है हमारा सिंपल सा फंडा। तो वेलोसिटी ऑफ कार सी, ओके, या अप्लाइंग द concept of constant velocity equal to distance upon time। तो we people can find out the time। तो हमें टाइम मिल जाएगा कि इतने टाइम टी में ये कार बी कार सी ए के पास पहुंचेगी। तो टाइम टी इज इक्वल टू व्हाट विल हैव डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर क्रॉस करना है ना ए टू सी अपॉन स्पीड या वेलोसिटी कितनी है कार सी की, दैट इज मैग्नीट्यूड ही बात करें, टाइम तो नेगेटिव में मिलेगा नहीं। तो इधर क्या हो जाएगा, बट कार सी इज रनिंग विथ व्हाट 54, इसका तो ये हो गया ना, लेकिन कार ए भी तो मूव कर रही है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे लगाना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू ए, कार सी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लगेगा। एज आई टोल्ड यू दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ पे पहले हम फाइंड कर लेते कि कार सी का ए के रिस्पेक्ट में कितना है, वेलोसिटी कितना हो जाएगा। तो वी सी ए कैन बी राइट एज वी सी माइनस वी ए, राइट। तो दिस इज -15 माइनस वी ए कितना है 10 है, राइट। तो इट विल बिकम व्हाट -25 मीटर पर सेकंड। लेकिन जैसे मैंने बात की कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड डालना है, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा -25 मिल रहा है डायरेक्शन। अगर हम कंसिडर करें वेलोसिटी की बात करें तो इधर तो टाइम चाहिए ना हमको। तो टाइम लेने के लिए सिंपली वी हैव टू अप्लाई द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि 25 4 100, तो इधर आ जाएगा 40 सेकंड। तो मतलब कि 40 सेकंड में t इज इक्वल टू 40 सेकंड, 40 सेकंड टाइम में ये कार सी ए तक पहुंचेगी। तो हमें अभी नाउ वी आर गेटिंग द आइडिया कि भाई कार बी को अगर एक्सेलेरेट करना है तो उसके पास टाइम कितना है 40 सेकंड। तो 40 सेकंड में मिनिमम एक्सेलरेशन कितना लगाएगा सो दैट इट कैन इजीली क्रॉस द कार ए एंड अवॉइड द एक्सीडेंट, सी से पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हाउ कैन वी अप्लाई, सिंपल कंसेप्ट यहाँ पे ऐसा लगेगा क्योंकि इधर ए एंड बी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे भी रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगेगा। तो व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली ये कम स्पीड होगी, उसकी सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो हियर सपोज इफ आई अप्लाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, it will become equal to what vb minus va, right, and that is equal to what vb कितनी है 15 माइनस कितना हो जाएगा 10, सो 5 मीटर पर सेकंड। और मतलब कि स्टार्टिंग में जब टाइम t इक्वल टू 0 काउंट होगा, 0 काउंट पे इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होगा और एक्सेलरेशन देना है तो स्पीड बढ़ानी है या वेलोसिटी बढ़ानी है, तो 5 मीटर पर सेकंड से उसको कितनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी सो दैट इट कैन क्रॉस द ए। मतलब कि ये जो हो गई वी बी ए दैट इज व्हाट इनिशियल वेलोसिटी, इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई या इनिशियल स्पीड हो गई, ओके। तो इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से वो भागेगा और 40 सेकंड के अंदर उसको कितना एक्सेलरेट करना पड़ेगा सो दैट इट कैन क्रॉस द कार ए। तो नाउ वी कैन अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस हमें पता है 1000 मीटर, तो यू कैन अप्लाई दिस कंसेप्ट ओनली d इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो यूजिंग दिस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा ये जो u है इनिशियल वेलोसिटी दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू a, मतलब कि ये जो हमारे पास आ गया वो ये यहाँ पे u लगेगा, ओके, और a हमें मिल जाएगा b का विथ रिस्पेक्ट टू a। तो यूजिंग दिस इक्वेशन व्हाट विल गेट, दिस इज इक्वल टू 1000, डिस्टेंस हमें पता ही है b और a के बीच में 1000 है, इनिशियल स्पीड हमारे पास है 5, टाइम हमारे पास है 40 सेकंड, ओके। तो 40 प्लस
initial acceleration acceleration of car B with respect to A हमें फाइंड करना है और 40 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20 मतलब 200 हो गया, प्लस इधर एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखो या ए मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी 40 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा 1600 डिवाइड बाई 2 दैट इज 800, राइट। यहाँ पे आप 1000 माइनस 200 को इस साइड लेके आओ, टोटल गया 800, मतलब कि यहाँ पे 800 ए बी इज इक्वल टू 800 मिला, मतलब कि एक्सेलरेशन कितना मिला कार बी का 800 बाई 800 दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन को समझो कि मिनिमम पूछा है, मिनिमम कितना, मिनिमम एक्सेलरेशन कार बी का, ओके। तो मिनिमम इतना एक्सेलरेशन होगा तो then it just cross the car A and avoid the accident. So this is very interesting question and see, very good concept of relative velocity is to be applied here in this particular question, okay. So hopefully this type of question, if you do practice, you people will easily understand. Now if you like the way I am presenting the question, you just subscribe my channel and just press the like button. Thank you.